May I sit, sir? बैठिए बैठिए. Thank you, sir. Simi, right? Yes, sir. So Simi, tell me something about yourself. Thank you, sir, for giving me this opportunity to introduce myself. Myself, Simi Singh, and I'm currently pursuing BTech from BN College of Engineering, which is located in Sitapur, near CSD Sahara, in Lucknow. I'm completed my 12th from Stila Maris Convent School, and I'm completing my 10th from Maharshi Vidya Mandir, which is located in Sultanpur. And Be relaxed, be calm, be confident. Okay, so don't be hesitate. So Simi, are you pursuing any internship from anywhere? yes, sir, I'm currently doing internship from Electrical Solution. Electrical solution. So what did you learn during your internship? So I have learned so many things in technical field. Like first of all, I learned that we have as switch gear and protection, and switch gear and protection, VFD panels, HMI, PLC, and currently I'm learning on AutoCAD electrical. AutoCAD electrical. Yes, sir. So Simi, tell me 15 components used in the RLC. Okay, so RLC. First of all, switches, NPB or NCPB, and contactors, relays, NCBs, and What we use for the overload? OLR. OLR. Yes, overload. What we use in the short circuit? MCBs, What we use to measure the voltage? voltmeter. What current we use, parameter, what we have to apply to protect the earth leakage? ELCBs, What we use to connect the component in that particular rail? we use the terminal blocks. Terminal blocks. Yes, sir. And what we use for timing based control application? Timer relay. Timer relay. Yes, sir. How many type of timer relay did you So, think? I have learned 3 types of timer relay: T on and T off, and third one is a cyclic. And in PLCs, I learned RTO, retentive timer on. Timer on. Or Okay, retentive. so what we have to use for protection of phase loss? PLL relay. PLL relay. Yes, sir. And what we have to use to control a 3-phase induction motor? DOL starters. We use starters. Starters. How many starters did you know? Yes, dual starters, and how much? So I forgot. Star, Star, delta, and starter. silencer. And alternative of the VFD is? Sorry, I forgot. Did you hear about the soft starter? Yes, sir. So what is the difference between the soft starter and VFD? Yeah. The soft starter reduces initial high current in the circuit. That also performed by the VFD. So why we say that these are the different devices to each other? So on which VFD did you work? So VFD V20 VF20. V20. Yes, sir. Dynamic V20. Dynamic V20. Sorry. Okay. So Simi, what is the formula we use to control the RPM of a motor through the VFD? So synchronous speed NS is equals to 120 into F by P. 120 upon P. Yes. So if the motor is 4-pole and frequency is 30 Hertz, what will be the synchronous speed? If the motor is 4-pole, So, 900 RPM. yes. Okay. So Sumi, could you explain the component used in this Siemens logo panel? Yes, sir. First of all, I see that there's pilot light is connected, and NOPB and NCPBs are there. Selective switches are there. Pilot lights are there. SMPS is used. 2-pole MCBs is used. This is the logo panel. Logo PLC. PLC, and this is the
mm, so relays are connected. TVs are used. Okay. See, this is relay Channel channel. How many channels are there? 4. 4 channel. How many inputs are in the here? 7. Is there 7? You have to count that. 8 input. 8. How many outputs are there? 4. 4. 8 over 4. So how many IO are there? 8 over 4. 8 over 4 IO. On which PLC did you work? Siemens PLC, we use Simatic S7 200 Smart software, and for HMI, we use Delta and Delta 107 EV, and for logo we use Logosoft, and for and for HMI we use ISP soft. ISP soft. For the Delta PLC, use ISP soft. For HMI, DOP soft. Okay, so the PLC of which used, what was the CPU name? ST20. ST20. How many inputs and outputs were there? For Siemens. Siemens. So 8 over 4. 8 over 4. Is there 4? Think that. How many inputs and 8 over 8. 8 over 8 IO. Yes, sir. Yes. Okay. So could you explain about the PLC and why we use in industry? Sir, first PLC is a programmable logic control, which we use in Is it a industries. programmable logic control or controller what? Programmable logic controller. Okay. Sir, we use PLCs because it is flexible, reliable, and easy to control, and it gives accurate answers as compared if you're doing it manually. So we use it, and there are 3 types of PLCs. First is compact, where we cannot change the IO cards, where we cannot add external IO cards, and the second one is modular, third one is rack type. Okay. Which is more convenient for a big industry? It's a modular. Modular. Yes, sir. Why we use the modular PLC? Sir, first benefit is that we can add external IO cards, outputs or inputs, and no idea, sir. Okay. Very good, Simi. Sir, ask the question, sir. तो सिमी जैसे कि सर ने पूछा, तो इसमें आप ये बताइए आप कि मॉडलर एंड रैक टाइप में मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं? ओके, तो आपने सर्टिफिकेशन में एक मेंशन किया है पीसीबी एंड सर्किट डिजाइनिंग. PCB, yes sir, and circuit design. तो इसके बारे में आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किए थे? Sir, Automation Studio. I use Automation Studio. Circuit. कंफर्म नहीं है इस चीज को आप देखिए. PCB and circuit design. पीसीबी एंड सर्किट डिजाइनिंग मेंशन किया है. Sir, I am not learning this currently. इसको करेक्ट करिए. Sorry, sir. और जैसे कि आपने जनरल स्किल्स में मेंशन किया है टीम मैनेजमेंट. Yes, sir. तो एक आपके पास टास्क है ऐसा कि मान लीजिए एक इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें एक ऐसा वर्क है जिसको आपकी टीम मिलकर काम कर रही है. अप्रॉक्स 8 लोग की टीम है, ठीक है. Yes, sir. तो उस वर्क को 2 दिन में कंप्लीट करना है, और उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए अगर 2 दिन कंटिन्यूअस 8 लोग की टीम पूरी वर्क करती है, तो वो काम आपका क्या होगा, कंप्लीट होकर डिलीवर कर पाएंगे आप, ठीक है. तो बाय द चांस अगर मान के चलिए 4 लोग अब्सेंट हो गए 2 दिन के लिए, तो आप उस वर्क को कैसे कंप्लीट करेंगे? Okay. Sir, सर जैसा आपने बताया कि मेरे पास में 8 मेंबर्स हैं, तो अगर 8 लोग 4 आर एब्सेंट, देन मैं उन्हें मतलब उन 4 में उन्हें सेलेक्ट करूँगी जो उस पर्टिकुलर टास्क में, जैसे होता है टीम वर्क में आप सब
एक ही काम के लिए नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो सब अपने अपनी फील्ड में, कुछ लोग किसी चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं। तो मैं जैसे कौन किस फील्ड में ज़्यादा बेहतर है जो आए हुए हैं, तो पहले उन्हें सिलेक्ट करूँगी। देन अब 4 लोग एब्सेंट हैं तो उसको टैकल करने के लिए पहले तो उनका मोरल डाउन ना हो, तो पहले तो मुझे खुद पे काम करना पड़ेगा। लाइक मुझे अपना मोरल डाउन नहीं करना पड़ेगा कि मुझे उसमें अपना 100% देना पड़ेगा। अगर मैं करती हूँ तो फिर वो लोग भी आगे काम करने की कोशिश करेंगे। और मैं ट्राई करूँगी कि मतलब सारे जो नहीं आए हुए हैं उनको वो अपने तरफ से अपना 100% दें। और बाकी सर कंडीशन पे है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे आप मान लीजिए कोई इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक इंसान होता है कि कहता है काम करो और निकलो ना, समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब, समझ रहे हैं? हाँ, सिंपल सा कहता है हमारा अगर ड्यूटी है, मान के चलिए 10 to 4 है, तो हम उसमें अपनी जर्नल ड्यूटी कर रहे हैं नॉर्मल, ठीक है। और एक इंसान होता है जो पूरा मतलब मन लगा के काम करता है और उस कंपनी या इंडस्ट्री को ग्रो करने के बारे में सोचता है। तो इसमें से दोनों कौन बेटर है और क्यों बेटर है? सर आई थिंक कंपनी को ग्रो करने वाला मेरे अकॉर्डिंग बेटर है। सर हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस भी इंडस्ट्री में है, तो पहली बात तो अगर वहाँ पे हम सर्वाइव तभी कर सकते हैं जब उस काम से हमें प्यार होगा। तो अगर हमारे काम से प्यार होगा तो जाहिर सी बात है कि हम उसमें अपना 100% देंगे। 100% देंगे तो हम स्विच भी करते जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लर्न भी करेंगे और मे बी अर्न भी करें। बिल्कुल, ठीक है। तो बेसिकली आप मिनी प्रोजेक्ट आपने एक मेंशन किया है, प्रोजेक्ट ऑन ऑटोमेटिक गैस डिटेक्शन, तो इसके बारे में थोड़ा सा एलेबोरेट करें। सर हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट मतलब एक तो तरह से सेफ्टी पर्पस के लिए यूज़ किया था, जिसमें हम लोगों ने MQ सेंसर का यूज़ किया था जो गैस को डिटेक्ट करेगा। बाकी और बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज़ किए थे, जैसे सर LEDs वगैरह, बैटरी और MQ सेंसर हो गया, और फैन, और जो एग्जॉस्ट फैन होता है जो उसको बाहर करेंगे। और कंट्रोलर कौन सा यूज़ किया था आपने? सर PI कंट्रोलर। कौन सा? PID। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे कि आपने लैडर लॉजिक और FBD मेंशन किया है, इसमें से दोनों में से कौन सी बेटर लगती है आपको? मुझे सर FBD। yes, क्यों? सर फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इजी टू वर्क, एंड FBD सर ब्लॉक डायग्राम से की तरह मतलब होती है, तो वो प्रोग्रामिंग में थोड़ी सी इजी इसलिए हो जाती है कि सर सिमुलेट करना भी मुझे ज़्यादा इजी लगता है। सिमुलेट करना इजी होता है FBD में। ठीक है। अच्छा, HMI जैसे आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है, HMI, तो HMI तो आपने यहाँ पे देखा होगा, वो कौन सी यूज़ कर रहे हैं आप? सर HMI वो उसकी ISP उसका सॉफ्टवेयर है, और HMI DOP सॉफ्ट। और HMI का क्या मॉडल नंबर है? वो 107 EV। 107 ठीक है। तो कोई एक बेटर एग्जांपल बता सकते हैं HMI का जो आपने कहीं और देखा हो? HMI जैसा ही, मतलब जिसमें HMI का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, नॉर्मल सी बात है, वगैरह कमांड देते हैं, मशीन ऑपरेट होती है, ऐसा कुछ? सर पेट्रोल पंप पे देखा है? यस सर, पेट्रोल। और कहाँ देखा है? HMI मेनली क्या है? कमांड ही देना होता है। यस सर। एक ही मशीन जाते हैं सर। यस सर। और कहाँ देखा है? सबसे पहला घर में HMI कौन सा देखा है? रिमोट देखा है। तो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए ना। ठीक है। और ये बताइए आप कि जैसे कि कोटेशन प्रिपरेशन आपने मेंशन किया है, उसके बारे में क्या आप कहना चाह रहे हैं? कोटेशन प्रिपेयर करना क्या होता है?
किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोर्स आप दे रहे हैं। कोटेशन प्रिपरेशन किसी कंपनी के किसी प्रोजेक्ट के बारे में एनालिसिस करने के बाद जो कंपोनेंट लगेंगे, जो प्राइसिंग आएगी, जो कंपनी में जब काम होगा तो कितने महीने में काम कंप्लीट होगा या कितना टाइम डायलेशन लगेगा, इन सारी चीज़ों को एस्टिमेट करके एक फाइलिंग करके क्लाइंट को भेज देना कोटेशन होती है। इज इट? या आपकी कंपनी उस काम को कितने में कंप्लीट कर देगी, क्या करेगी, कितने लोग होंगे, टीम क्या होगी, ड्यूरेशन क्या होगी, कॉस्टिंग क्या होगी, बेस कॉस्टिंग क्या होगी, टोकन अमाउंट क्या होगा, इन सारी बातों को मेंशन करके भेज देना क्या होता है? कोटेशन प्रिपरेशन होता है। तो जो सीवी में आप लोग रखा करें वो रहे, नहीं रखना है तो हटा, नहीं समझ में आए हटा दीजिए, या अगर है तो इसके बारे में तैयार करके आइए। ठीक है। समर ट्रेनिंग आपने कहाँ से कंप्लीट की है? सर यूपीपीसीएल। यूपीपीसीएल में आपने देखा होगा लाइटनिंग अरेस्टर लगा होता है। Yes. क्यों यूज करते हैं हम लोग लाइटनिंग So अरेस्टर? lightning arresters are basically used for protection of high voltage current. ओके। Yes. आप ये बताएं, वहाँ पर वीसीबी लगा होता है, देखा है कभी? वीसीबी ट्रांसफार्मर के अंदर भी लगता है और बाहर भी लगाते हैं हम लोग। PCB. वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। Yes sir. वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को एक और नाम से पुकारा जाता है, क्या कहते हैं? SF6. SF6। अच्छा, आप सब स्टेशन में यूज होने वाले 10 कंपोनेंट के नाम बताइए, मेजर कंपोनेंट्स के। Transformer, current transformer, potential transformer जिसको CVT भी बोलते हैं, और lightning arrestor, wave trap, and sorry, tandem isolators, circuit breakers, conductors, types of conductors like moose, zebra, panther. आपने सब स्टेशन के अंदर पैनल्स देखे? Control panels, yes sir. कंट्रोल पैनल में आपने देखे होंगे कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में यूज होने वाले 7 कंपोनेंट के नाम बता दीजिए। सर एक पैनल होता है, कंट्रोल पैनल, जिसमें सारी रीडिंग्स ली जाती हैं, एंड स्विचेस, पायलट लाइट्स, इमरजेंसी लाइट, एंड so some relays are used, and MCBs, protection for, and toggle switch, टॉगल स्विच। और क्या यूज़ की जाती होंगी? वोल्ट मीटर एंड एमीटर रीडिंग के लिए। ओके। और क्या यूज़ की जाती होंगी? अगर 3 फेज की सप्लाई पास करनी है तो क्या यूज़ किया जाता है? अगर हमें किसी अप्लायंस को 3 फेज सप्लाई पास करनी है स्विचिंग करने के बाद, तो कौन सा कंपोनेंट यूज़ करेंगे? कॉन्टैक्टर यूज़ करेंगे। अगर हम ओवरलोड से बचाना चाहते हैं तो क्या यूज़ करेंगे? OLR यूज़ करेंगे। सिमी, आप कोई छोटा सा प्रोग्राम अगर हम दें लॉजिक, तो आप बना के दिखा देंगे? ट्राई करेंगे। आपको एक बॉटल फिलिंग का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, जिसमें बॉटल आएगी, सेंसर सेंस करेगा, बॉटल को फिल करेगा, वापस से कन्वेयर को चला देगा, बॉटल आगे निकल जाएगी, और बॉटल आती रहेंगी, सेंसर सेंस करता रहेगा, बॉटल फिल होती रहेगी, और फिर से कन्वेयर चलती रहेगी जब तक हम स्टॉप नहीं कर देते। एक स्टॉप बटन लेनी है, एक स्टार्ट बटन लेनी है, एक सेंसर लेना है, जिसको यूज़ करके आपको कन्वेयर सिस्टम को कंट्रोल करना है, सोलेनॉइड को कंट्रोल करना है, बॉटल फिलिंग का प्रोग्राम बनाना है। बना पाएंगे? और बना के जैसे बन जाए फिर हमको शो कराइए। इज इट? प्रोग्राम, हाँ, प्रोग्राम जैसे ही बन जाए वैसे ही शो कराइए। ओके। तो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है तो उसे किन स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए? सर थ्योरेटिकल स्किल्स पे ज़्यादा नहीं, प्रैक्टिकल स्किल्स पे ज़्यादा, जो मेरा मानना है कि प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। एंड अपकमिंग जनरेशन्स के लिए सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर के टच में होना चाहिए। जो हमारी बेसिक, लाइक हम इलेक्ट्रिकल से हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी टेक्निकल चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और किस तरह की ट्रेनिंग स्टूडेंट को फ़ायदा पहुंचाती है? सर
ऑटोमेशन बेस्ड जो भी ट्रेनिंग्स होंगी, हार्डवेयर से ज़्यादा सॉफ्टवेयर एंड्स पे जो भी ट्रेनिंग होगी उस पर। क्या पोर्शन ज़रूरी होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए? क्या क्या सेगमेंट्स, उसे क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए? क्वालिटीज़ दैट नहीं, हमारा ये कहना है कि जैसे एक स्विच गियर में प्रोडक्शन हो गया, और क्या आना चाहिए उसको? ओके सर, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज he should learn about SGP and about relays and HMI panel, BFD and PLCs, SCADA, networking. That's it. And for designing purpose, if you want to design the AutoCAD panel, electrical, the most AutoCAD important. electrical, or these skills will combine that form a perfect electrical engineer. a perfect electrical Yes, engineer. sir. So are you efforting to be that? Yes, sir. I'm trying my best. Okay, thank you Simi. Thank you, And sir. go there and prepare that program. जैसे ही complete हो जाए हमें inform करिए. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Welcome.